Okay, welcome back, students, to our new course of second year BSc Optics. In this course, we are going to understand about the optics and the lasers. Okay, it is a very important subject of the physics as per second year BSc course. Okay, so I'm going to show you about syllabus of the optics and lasers. You can see here, this is your syllabus. You can see this syllabus on your screen. You can see uh, there are 5 units in this course. Okay, first one is geometrical optics, second one is interference, third one is diffraction, fourth one is polarization, and fifth one is non-linear optics. Okay, these are the 5 chapters includes this course optics and lasers. Okay, so first of all we are going to understand about the first unit, geometrical optics, and today we are going to understand about the first one concept, which is deviation produced by thin lenses. Okay, so this is the topic you understand here, you can understand here. Okay, so before going to start, I'm going to just introduce you about the optics and geometrical optics. What is the geometrical optics and where it begins? Okay, so we know that light is an electromagnetic wave. Optics is one subject related with physics, with this with the study of nature and properties of light. Okay, optics is divided into 3 different branches: geometrical optics, physical optics, and quantum optics. So I'm going to show you in paint. You can see here there are 3 types of optics. Okay. Okay. So first one is what? Geometrical optics. Geometrical. Geometrical. Okay. Second one is what? It is physical optics. Okay. It is what? Physical optics. And third one is what? Quantum optics. Okay. So there are 3 branches of the optics where we can study about the geometrical optics, physical optics, and quantum optics. So here we are going to understand about this geometrical optics. Okay, so what is the geometrical optics? Geometrical optics describes light propagation in terms of rays. Okay, means यहाँ पर जो लाइट का प्रोपेगेशन है उसको हम लोग रेस के फॉर्म्स में इसको क्या करेंगे, हम लोग रेस के फॉर्म्स में इसको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है ना। तो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में ये हम लोग पढ़ते हैं जिसके अंदर की एक्सप्लेन होता है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ट्रांसमिशन, एब्सॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन एंड डिफ्यूजन ऑफ लाइट। ओके, जो दूसरा वन है फिजिकल ऑप्टिक्स। ठीक है ना। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ लाइट वेव इंटरफेरेंस। ओके, जो लाइट का जो इंटरफेरेंस होता है, जो जैसे कि ये फर्स्ट वन लाइट है, ठीक है ना, और दूसरा वाला लाइट है, ठीक है ना, इन दोनों का इंटरफेरेंस क्या होगा, इन दोनों का जो इंटरफेरेंस है वो क्या होगा यहाँ पर, मतलब इंटरफेरेंस होगा, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है उसके अंदर डिफरेंस आएगा। ठीक है, और उसका जो वेव स्ट्रक्चर है उसमें भी क्या आएगा, इसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग फिजिकल ऑप्टिक्स में हम लोग मतलब पढ़ते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर डबल रिफ्रैक्शन पोलराइजेशन भी इंट्रोड्यूस होता है। It also explains the use of thin film. Okay, what?
It also uh, explains the concept of thin films. Thin films means what? अगर कोई हम लोग फिल्म ले, जैसे कि कोई हमने यहाँ पे एक फिल्म लिया, ये बहुत ही थीन होगा, मतलब बहुत ही पतला होगा और ये बहुत ही थीन होगा, डेंस होगा। ठीक है ना, पतला होने के साथ साथ क्या होगा, ये डेंस होगा। अगर हम लोग कोई फिल्म लेते हैं, इट में भी द, जैसे कि कोई फिल्म है, जैसे कि इसको बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं परत, मराठी में भी इसको बोलते हैं याला म्हणतो आपण, म्हणजे एक एकदम बारीक जी स्लाइड असते त्याला आपण म्हणू शकतो की इट इज अ थीन फिल्म। ओके। और क्वांटम ऑप्टिक्स जो थर्ड वाला है, इसके अंदर हम लोग क्या स्टडी करते हैं, हम लोग इसमें स्टडी करते हैं इंटरएक्शन ऑफ लाइट विथ एटॉमिक एंटिटीज ऑफ मैटर। ओके, क्वांटम में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कि अभी ये कोई लाइट है, ठीक है, अभी ये वेव है, देखो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अगर ये वेव है, ठीक है, तो इसका इंटरएक्शन कैसा होगा, जैसे कि अभी कोई मैटर पड़ा हुआ है या फिर कोई लैटिस है, लैटिस नहीं बताऊंगा मैं, जैसे कि कोई मैटर पड़ा हुआ है, तो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ होगा, है कि नहीं, कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है ना, और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे बाय बॉन्ड। ओके, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड होंगे। ठीक है, तो ये जो लाइट है, इसका इंटरएक्शन इस एटम के साथ में या इस मॉलिक्यूल के साथ में कैसा इंटरएक्शन होता है, ये डिफ्रैक्ट होता है, रिफ्लेक्ट होता है, सॉरी, या फिर ये डायरेक्टली पास आउट हो जाता है इस मैटर के, ये सब हम लोग किस में स्टडी करते हैं, हम लोग ये किस में स्टडी करते हैं, हम लोग क्वांटम ऑप्टिक्स में। ठीक है ना, जिसमें हम लोग एटॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं। ठीक है ना, अगर आप एटॉमिक लेवल पर स्टडी कर रहे हो, इसका मतलब क्या, कि आप लोग क्वांटम लेवल पर स्टडी कर रहे हो। ठीक है ना, जियोमेट्रिकल और जो फिजिकल है, ये क्लासिकल लेवल पे आता है। क्लासिकल मीन्स व्हाट, क्लासिकल मीन्स not at we are not study at the atomic level। okay, we are study at the macroscopic terms। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े जो बॉडीज होते हैं, या फिर जिसको हम लोग देख सकते हैं, या फिर जिसको हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको अगर उसको लेकर के हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक, मीन्स क्लासिकल लेवल। ठीक है ना, और जिसको हम लोग देख नहीं सकते, जैसे कि एटम्स वगैरह हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो वी आर नॉट एबल टू सी इट। ओके, तो जो एटॉमिक लेवल पे हम लोग जो स्टडी करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन लेवल पे, उसको हम लोग क्वांटम ऐसा बोलते हैं। ठीक है ना, दो होते हैं, एक क्लासिकल होता है, क्लासिकल में हम लोग मैक्रोस्कोपिक जो बॉडीज होती हैं उसकी स्टडी करते हैं, और जो क्वांटम लेवल होता है वो मतलब आपका एटॉमिक लेवल होता है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये था आपका ऑप्टिक्स के बारे में कि इसकी कितनी ब्रांचेस है, तो इसके तीन ब्रांचेस है, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ओके, तुम्हाला ऐकू येतोय ना माझा आवाज? हेलो, एनीवन कैन आंसर, यस और नो? हो सर। यस सर। ओके ओके, तो अभी इसके बाद में देखो, अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि लेंसेज कितने टाइप के होते हैं। ठीक है ना, तो अपना जो अभी नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंसेज। ये बेसिक मैं बता रहा हूँ आपको कि ये ऑप्टिक्स स्टार्ट होने के पहले इसका आपको नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है ना, तो ये बेसिक टर्म्स है। ठीक है, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में आता है लेंस, ये सब आप ट्वेल्थ में पढ़ चुके हो, तो अभी सेकेंड ईयर बीएससी में थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। ठीक है ना, तो सेकेंड ईयर बीएससी में आपके सिलेबस में आप लोग देख सकते हो कि आपको कोई बेसिक नहीं बताया हुआ है, या कोई इंट्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, सीधा सीधा आपको टॉपिक बताया हुआ है। तो वो डायरेक्ट एक्सप्लेन करने से अच्छा है मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, 1 सेकेंड। ओके, तो देखो अभी दूसरा टॉपिक है, जैसे कि व्हाट इज अ लेंस। ओके, लेंस क्या होता है, सबसे पहली बात तो व्हाट इज द लेंस। ओके, तो लेंस क्या होता है ये हमको पहले समझना चाहिए। इट इज अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस। ठीक है ना, तो ये एक तरह का क्या होता है कि
ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ठीक है ना, जो कि दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड होता है। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक बनाता हूँ, ओके, ठीक है। अभी देखो ये ट्रांसपेरेंट मीन्स एक ग्लास ही होगा। अगर कोई हो सकता है प्लास्टिक भी हो, आजकल प्लास्टिक भी ऐसे आते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे ग्लास के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। ग्लास मीन्स कांच, ठीक है ना। तो ग्लास क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर वो अच्छे से इसको प्यूरिफाई करके बनाया गया है तो ग्लास क्या होता है, एक प्योर सिलिका लेते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसी को हम लोग ग्लास बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो ये एक पहला कर्व्ड आपको सरफेस दिख रहा है और ये दूसरा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो इन दोनों को जो जोड़ के जो बनाया हुआ रहता है, इन दोनों का अगर मैं पार्टीशन कर दूं तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको पार्टीशन कर दूं तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये, तो इस तरह से जो दो ट्रांसपेरेंट जो ग्लास होगा या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा और वो बाउंडेड होगा इसके जैसे ही, जो यहाँ पर है, ठीक है ना। ये जब दोनों बाउंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, तो जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? लेंस, ठीक है ना। तो देखो लेंस दो टाइप के होते हैं जनरली। इन जनरल वे इट इज टू टाइप्स, ओके। तो दो टाइप के लेंस होते हैं। तो पहला होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो जो पहला है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, कौन सा? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और जो दूसरा वाला होता है आपका, ये होता है आपका कॉनकेव लेंस, ओके, कॉनकेव लेंस, ओके। तो दो टाइप के लेंस होते हैं। तो देखते हैं इसको, इसका मतलब ये देखने में कैसा होता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस में बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। तो पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाते हैं। तो ये मैंने दो स्फीयर लिए, ठीक है। और इसको मैंने क्या किया, एक सेकंड ना, ओके। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। ये चीज़ मैंने क्या की, यहाँ पे इरेज कर दी। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ उसी हिसाब से बनता है ये लेंस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे मैं बना रहा हूँ ना, तो वैसे दो स्फीयर को मिला करके कॉन्वेक्स लेंस बनता है, ठीक है ना। तो ग्लास के ऐसे दो स्फीयर होते हैं, ठीक है ना, स्फेरिकल। तो उन दोनों को ऐसे फ्यूज किया जाता है, मतलब उसको हीट करने के बाद में जो ग्लास है वो मेल्ट मेल्ट हो जाता है, तो उसको इस तरीके से इसको फ्यूज कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में देखो यहाँ पे आपको दो सरफेस दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपको दो सरफेस दिखाई दे रहा होगा। तो ये वाला जो है ये आपका, एक मिनट, तो ये वाला जो है आपका फर्स्ट सरफेस है, ये वाला, ये जो आपको बाहर से निकला हुआ दिख रहा है कर्वी, इसको सरफेस वन बोलेंगे और इसको सरफेस टू बोलेंगे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सरफेस टू। तो इस टाइप का जो आपको दिखाई देता है, ठीक है ना, इस टाइप का जो आपको दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जो यहाँ पर इसका जो सेंटर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसका जो सेंटर होगा इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकल सेंटर। ये मैं आगे आपको बताऊंगा अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल सेंटर,
ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, जो इसका सेंटर होता है, ठीक है। अभी वैसे ही देखो कॉनकेव लेंस कैसा होगा, तो देखते हैं, चलो बनाते हैं कॉनकेव लेंस बनाते हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड। तो वापस मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 स्फीयर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। ये देखो इसको 2 स्फीयर लिए, और एक ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इसको फिर मैं इसको जोड़ देता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये रफली मैं बना रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बन पाएगा, तो जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ इसी तरीके से बनता है ये। ठीक है। अभी देखो यहाँ पे, अभी आपको अंदर के साइड में जो कर्व सरफेस दिखाई दे रहा होगा, ठीक है नहीं, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर ये पहला सरफेस आपका जो अंदर की तरफ में है, और यहाँ पे ये दूसरा वाला जो सरफेस है वो भी अंदर की तरफ है। तो इस टाइप का जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इजीली देख सकते हो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको कॉनकेव लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये होगा, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये जो सेंटर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे इसको, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। तो आप लोग अभी यहाँ से आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि ऑप्टिकल से मतलब कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है और कॉनकेव लेंस कैसा होता है। तो दो टाइप के जनरली लेंसेस होते हैं, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, ठीक है, इस टाइप से। ओके, तो इसके आगे है, अभी देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अभी ये कॉन्वेक्स लेंस है यहाँ पर, ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही इस कॉनकेव लेंस की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। तो प्रॉपर्टीज क्या है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो देखो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है वो क्या, इसका प्रॉपर्टी क्या है कि ये कॉन्वर्ज करता है, जो रेस पड़ती हैं इसको, इसको क्या करता है, इसको ये कॉन्वर्ज करता है। कॉन्वर्ज मीन्स व्हाट, अभी बताता हूँ मैं आपको। और जो दूसरा वाला है ये इसको क्या करता है, अगर इसके ऊपर कोई रे पड़ रही है तो ये क्या करता है, इसको डाइवर्ज करता है, ठीक है ना। तो कॉन्वर्ज, व्हाट इज द कॉन्वर्जेंस एंड व्हाट इज द डाइवर्जेंस, इसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, 1 सेकंड में यहाँ पे वापस बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अभी ठीक है, तो मैं वापस बना देता हूँ अभी 2 मिनट में। ये जो लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस और जो कॉनकेव लेंस होता है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है ना। तो उस प्रॉपर्टी के उसको समझना बहुत जरूरी है। इसका नेचर मतलब मीन्स, प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, इसका नेचर क्या है। अगर वाई कॉन्वेक्स लेंस है तो वो मतलब कॉन्वेक्स लेंस है तो उसको क्या करेगा, अगर उसके ऊपर रे पड़ेगी तो उसका फंक्शन क्या है, या फिर उसका काम क्या है, वो क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग अभी इजीली देख सकते हो कि ये एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि अगर बाहर से रेस आती हैं, ठीक है ना, अभी इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है सपोज ये है, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर ये, ठीक है ना। और इसका एक एक्सिस होता है, क्या होता है यहाँ पे, एक्सिस, ठीक है। तो ये एक इसका एक्सिस है, और इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक एक चीज आपको ध्यान देते जाना है।
अगर आपके पास में नोटबुक होगी तो उसको नोट डाउन करते हुए चलो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिकल सेंटर। अभी ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो ये मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो आप लोग इसको वहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो इट इज़ ऑप्टिकल सेंटर। ओके, दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। ओके, और ये जो है, ये आपका क्या बताता है? ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस बताता है। क्या बताता है ये? इट इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो उसके ऑप्टिकल सेंटर से होके जाती है। मतलब ये कहाँ से होके जा रहा है? ठीक है ना, ये आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होके जा रहा है। ठीक है नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ठीक है ना? और ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, इसको तो ऑप्टिकल सेंटर ही बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है ये। ठीक है, उसके बाद में देखो अभी क्या करता हूँ मैं कि इसके ऊपर कुछ रेस, इसके ऊपर इंसिडेंट करता हूँ। जैसे कि ये एक रे आ रही है यहाँ से। 1 सेकेंड। ठीक है ना, ये एक रे आ रही है। रे आने के बाद क्या होगा? इसका नेचर क्या है? देखो ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, इसका नेचर क्या है? ये क्या करता है, जो इसकी तरफ रेस आती हैं, ठीक है ना, उसको क्या करता है? कॉन्वर्ज करता है। मतलब क्या कि कॉन्वर्ज करना मतलब क्या? एक पॉइंट पर इसको कॉन्सेंट्रेट करता है ये। ठीक है ना, तो ये देखो इस तरीके से इसको कॉन्सेंट्रेट कर देगा। मतलब अगर ये सीधी जा रही है, ये सीधी जा रही है, तो इसको क्या कर देगा? इसको बेंड कर देगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये जो अभी रे है, ये किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा? मीट होगा। मतलब क्या है? इसको प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ इसको बेंड कर दे रहा है ये। मतलब इसको कॉन्वर्ज कर दे रहा है। ठीक है, वैसे ही ये जो नीचे वाला रे है, इसका भी वैसे ही होगा। ये देखो, ये भी क्या हो जाएगी? कॉन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या होते हैं? मीट होते हैं। ठीक है ना, ये दोनों रेस क्या होते हैं? मीट होते हैं। यहाँ पे आप इजीली इसको देख सकते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है? ये मीट हो रहा है एक किसी पॉइंट पे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या कि जो रेस आ रही हैं, ये लेंस क्या कर रहा है? इसको बेंड करके कॉन्वर्ज कर दे रहा है। ठीक है ना, इसको कॉन्वर्ज कर रहा है। और ये जो भी रेस हैं, ये किसी पॉइंट पे जाके मिल रहे हैं। तो ये जो पॉइंट पे मिल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकाई। इसको क्या बोलते हैं? फोकाई। फोकाई और फोकल पॉइंट। इसको आप लोग फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो। इट इज योर फोकल पॉइंट। ये ध्यान में दो, ये बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अगर नोट डाउन करनी है या इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते हुए चलो। ठीक है, तो ये आपका हो गया फोकल पॉइंट। ओके, और ये आपका ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोकाई। ठीक है, तो इसके दो नाम है, फोकाई और फोकल पॉइंट। तो आप लोग इसको फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो। फोकल पॉइंट इट इज। ओके, तो इसके अलग अलग नाम है। तो अभी देखो, अभी व्हाट इज द फोकल लेंथ? तो फिर फोकल लेंथ क्या होती है? ठीक है ना, अभी देखो यहाँ पे फोकल लेंथ क्या होती है? तो जो ऑप्टिकल सेंटर है, वहां से लेकर के, ये जो ऑप्टिकल सेंटर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक सेकंड। ठीक है ना, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ठीक है, तो अभी यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ, व्हाट इज़ द फोकल पॉइंट, व्हाट इज़ द ऑप्टिकल सेंटर एंड व्हाट इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। चार चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ चुकी हैं। ठीक है ना, अ, अभी इसके आगे है कि देखो ये इसका नेचर क्या है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। ध्यान देना, कॉन्वेक्स। तो ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो इसका काम क्या है? जो रेस आ रही हैं, उसको कॉन्वर्ज करना। ठीक है ना, ऑप्टिकल लैंग्वेज में हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? इट कॉन्वर्जेस द इंसिडेंट रेस, ओके,
इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस। ओके, मतलब जो भी रेस इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है इसको किसी पॉइंट पर उसको क्या कर देना, उसको कॉन्वर्ज कर देना। ठीक है ना, देखो बेंड होके किसी पॉइंट पर क्या हो रही है, कॉन्वर्ज हो रही है। ठीक है ना, तो ये कॉन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी हुआ या कॉन्वेक्स लेंस का नेचर हुआ। ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस। तो अभी देखो इसके आगे दूसरा वाला है कॉन्वर्जेंस। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे थे, ध्यान में देना, कॉन्वर्जेंस की। देखो ये मैथमेटिक्स में भी आता है आपके। ठीक है ना, मैथमेटिक्स अगर किसी का कैलकुलस होगा तो उन्होंने ये इसका मतलब इसका स्टडी किया होगा कि व्हाट इज द कॉन्वर्जेंस। ओके, कॉन्वर्जेंस। ओके, एंड व्हाट इज द डाइवर्जेंस। ओके, तो ये मैथमेटिक्स का भी मैथमेटिक्स में ये वर्ड आप सुन सकते हो, व्हाट इज द कॉन्वर्जेंस एंड व्हाट इज द डाइवर्जेंस। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे दूसरा वाला हम लोग देखते हैं अभी, व्हाट इज द डाइवर्जेंस। ओके, तो अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है फोकल पॉइंट, क्या होता है फोकल लेंथ। ठीक है ना, क्या होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो इसको मैं अभी दोबारा से इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अभी मैं एक बना लेता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो है ये मैं बना रहा हूँ आपका कॉनकेव लेंस। इसको मैं बना के देखो यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ कि बनाते कैसे हैं। ठीक है ना, तो आप जब भी बनाओगे तो इसको अच्छे से बनाओगे। ठीक है, तो अभी देखो। ओके, अभी देखो यहाँ पर, अभी इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है कहाँ पर होगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा यहाँ पर। 1 सेकंड। हाँ, इसका जो ऑप्टिकल सेंटर है कहाँ पर होगा, यहाँ पर। अभी अगर मैं इसके ऊपर कोई, अभी इसका प्रिंसिपल एक्सिस में पहले बना देता हूँ। सो दिस इज योर व्हाट, इट इज योर व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो अभी क्या कर रहा है, अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई इंसिडेंट, लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर क्या हो रही है, कोई तो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है। हम्म, और यहाँ से भी एक लाइट इंसिडेंट हो रही है। ठीक है ना, अभी तो ये जो लेंस है ये क्या करेगा अभी यहाँ पे, ये कौन सा लेंस है, ध्यान देना, ये कॉनकेव लेंस है, ध्यान में रखो। इट इज योर कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तभी देखो ये क्या करेगा, ये इसको डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा, इसको बेंड करके इसको क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। ठीक है ना, इसको क्या कर देगा, ये डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको क्या कर दे रहा है, डाइवर्ज कर दे रहा है। ठीक है ना, तो अभी अगर मैं इसको जहाँ से, अभी इस पॉइंट से क्या हो रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहा है, मतलब बाहर की तरफ ये बेंड हो जा रहा है, इसको ही हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका फोकल पॉइंट कहाँ पर आएगा, इसका फोकल लेंथ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। हमको केवल इसको, ये जहाँ से बेंड हुआ है, यहाँ से बेंड हुआ है ना, इसको हमको क्या करना है, इसको पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड कर देना है, बस। ठीक है ना, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से इसको पीछे की तरफ में इसको क्या किया, एक्सटेंड कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी ये वाला जो पॉइंट है, ये भी, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पे बन रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपको पता है, फोकल पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल पॉइंट। ओके, फोकल पॉइंट। और इसका जो डिस्टेंस होगा इस ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है ना, इस फोकल पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस ऑप्टिकल सेंटर से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोकल लेंथ। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। ठीक है, तो
डाइवर्जेंस क्या होता है, बाहर की तरफ, मतलब जो रेस आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसको बाहर की तरफ फेंक देना है। ठीक है ना, इसको हम लोग डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है। और ये बैक साइड में ये क्या होते हैं, ये रेस मीट होते हैं। ठीक है ना, मतलब हम लोग इमेजिनरी तौर पे इसको ड्रॉ करते हैं, जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग इमेजिनरी तौर पे इसको फोकल पॉइंट और फोकल लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसको हम लोग फोकल पॉइंट और इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये जो बाहर की तरफ बेंड हो जाना है, ये जो इसका जो नेचर है, किसका, इस कॉन्केव लेंस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज द डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्केव लेंस। ओके। सो इट इज योर डाइवर्जेंस एंड इट इज योर व्हाट, कॉन्वर्जेंस। तो इस तरीके से आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड इसको कर सकते हो कि व्हाट इज द डाइवर्जेंस एंड व्हाट इज द कॉन्वर्जेंस। ओके। तो यहाँ पे देखो, हाँ, इट इज योर व्हाट, कॉन्वर्जेंस। ओके। एंड दिस इज योर व्हाट, डाइवर्जेंस। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया है, हम लोगों ने देख लिया कि ऑप्टिक्स के टाइप्स कौन कौन से हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है ना। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोग क्या क्या देखते हैं, लेंस देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग दो टाइप देखते हैं। ठीक है ना। तो दो टाइप हम लोग कौन कौन से देखते हैं, कॉन्केव लेंस। ओके। दो टाइप हम लोग देखते हैं, कॉन्केव लेंस देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। और दूसरा कॉन्वेक्स, सॉरी, कॉन्वेक्स लेंस, और ये आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है ना, ये दो देखते हैं। और उसकी हम लोग प्रॉपर्टीज भी अच्छे से समझ चुके हैं कि व्हाट इज द कॉन्वर्जेंस एंड व्हाट इज द डाइवर्जेंस। ओके। तो अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना, जिसमें अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक और चीज़ है, जो एक इक्वेशन था जो आपको मुझे बताना था। तो देखो, एक्चुअली अभी केवल 10 मिनट्स ही रह गए हैं अपने पास। तो जो अपना मेन टॉपिक है वो मैं आपको कल के दिन सेम टाइम पे 9:45 पे आपको बताऊंगा। तो एक जो इक्वेशन है, मैं आपको उसके साथ में फेमिलियर थोड़ा कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। अभी जैसे कि मैंने बनाया यहाँ पे एक एक मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। तो एक मैं यहाँ पे लेंस में यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है। तो देखो होता क्या है कि एक, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से रेस निकल रही हैं। ठीक है। तो रेस निकल रही हैं वहाँ से, तो उसका इमेज कैसा बनता है। ठीक है ना, तो उसका इमेज कैसा बनता है और उसका रिलेशन क्या होता है फोकल लेंथ के साथ में। ठीक है ना। तो फोकल लेंथ के साथ में उसका रिलेशन क्या होगा, वो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो ये देखो, ये इसका मेन, इसका मतलब, दो भागों में जो इसको डिवाइड कर देते हैं, वो इसका एक्सिस है। इसका इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस निकालते हैं यहाँ से। ठीक है ना। तो ये देखो, इसका प्रिंसिपल एक्सिस में निकालता हूँ। ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ, जो कि क्या है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अभी यहाँ से क्या हो रही है कि यहाँ से रे निकल रही है इस ऑब्जेक्ट से, जैसे टॉर्च है, यहाँ से हम लोगों ने टॉर्च जलाया और यहाँ पे ये रे इंसिडेंट हुई, तो उसके बाद में ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये क्या करेगा, इसको कॉन्वर्ज कर देगा। ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे लिया हुआ है, तो ये इसको क्या कर देगा, कॉन्वर्ज कर देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कहीं आके ये प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगा, ये टच करेगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगा, यहाँ पर आके टच करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका इमेज है। ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट है जहाँ से इंसिडेंट लाइट निकल रही है, और ये आपका इमेज है जहाँ पर इसका इमेज बन रहा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ठीक है ना, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसको हम लोग कुछ नाम देंगे। और ये वाला जो दूसरा वाला जो डिस्टेंस होगा, एक सेकंड में इसको अलग कलर से बताता हूँ। ठीक है ना, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसको मैं अलग पैरामीटर से बताता हूँ। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा, इसको देखो, ये वाले डिस्टेंस को मैं -u नाम देता हूँ। क्या नाम देते हैं इसको, -u। ठीक है। और ये वाला जो है,
आपका ये वाला जो डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज का जो डिस्टेंस है इसको मैं वी नाम देता हूँ, ठीक है ना। अभी देखो मैं इसको प्लस बता सकता था, लेकिन इसको प्लस क्यों नहीं बताया मैंने, उसके पीछे कारण है, क्योंकि ये देखो ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस नाम दे दूँ, इसको मैं वाई एक्सिस नाम दे दूँ, तो ये इसका ओरिजिन हुआ। तो ओरिजिन से जब हम लोग इधर के साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और ओरिजिन से जब हम लोग उसी डायरेक्शन में पीछे की तरफ जाते हैं तो इसको निगेटिव कंसिडर करते हैं। इसलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, माइनस यू लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको प्लस यू नहीं लिखा हुआ है। तो माइनस यू क्या है, इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। और वी क्या है आपका, ये इमेज डिस्टेंस है, क्या है ये इमेज डिस्टेंस है, ये क्या है आपका, ये इमेज डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और ये इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसका एक रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ में, तो देखो इसका फोकल लेंथ के साथ में एक रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन क्या है, देखो ये रिलेशन है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। तो ये रिलेशन है, तो इस ये रिलेशन कैसे आया हुआ है, तो ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए अभी के लिए ये अंडरस्टैंड कर लो कि ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है हमेशा, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ के साथ में, ठीक है। तो इस रिलेशन को हमको ध्यान में रखना है और इस रिलेशन का यूज़ है, ठीक है। तो जहाँ कहीं भी हमको ये जो पैरामीटर है ये 1/v - 1/u ये वाला अगर पैरामीटर अगर हमको कहीं दिखता है तो उसकी जगह पे हम लोग 1/f क्या कर सकते हैं, इसको इसको मतलब उस जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं कि 1/f वहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं, या फिर कहीं 1/f है तो उसकी जगह पे हम लोग ये चीज़ पुट डाउन कर सकते हैं। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में काम में आता है, क्योंकि अगर हमको यू और वी और यू का अगर हमको वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग 1/f की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर f की वैल्यू दी हुई है तो u और v का हम लोग यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका ये कैसे आया ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही। तो इसको अच्छे से आपको अंडरस्टैंड, एक एक चीज़ अच्छे से इसमें अंडरस्टैंड कर लेनी है आपको कि क्या होता है आपका लेंस, क्या होते हैं लेंस, कितने टाइप के लेंस होते हैं, ठीक है ना। तो लेंस क्या होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना। तो ये आपका लेंस होता है, ठीक है। और कितने टाइप के लेंस होते हैं, तो दो टाइप के लेंस होते हैं, कौन से कौन, तो कितने टाइप के लेंस होते हैं, दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने केवल बेसिक अंडरस्टैंड किया हुआ है, क्या किया हुआ है हम लोगों ने, केवल बेसिक अंडरस्टैंड किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने, जो बेसिक चीज़ें जो लगती हैं ऑप्टिक्स के लिए, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हुई है। तो कल के दिन हम लोग अपना पहला जो टॉपिक है, जो पहला कंसेप्ट है वो अंडरस्टैंड करेंगे। कौन सा कंसेप्ट है ये वाला, ठीक है ना। तो ये कल के दिन हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे ऑप्टिक्स एंड लेजर में, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में जो आपका पहला टॉपिक है, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय थिन लेंसेज, ठीक है ना। तो कल के दिन हम लोग ये डेविएशन निकालेंगे, ठीक है। और उसका डेरिवेशन है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें आपकी यूज़ होने वाली है, देखो मैंने आपको जो बताया ये चीज़ यहाँ पे यूज़ होने वाली है, जो मैंने आपको अभी लेटेस्ट अभी जो जस्ट पहले मैंने बताया कि ये जो इसकी जगह पे हम लोग 1/f लिख सकते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे 1/f लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। देखो ये वाला मैंने यूज़ किया हुआ है, और ये कैसे आया हुआ है ये भी मैं आपको कल के दिन बताऊँगा, ठीक है। तो ये हम लोग डेविएशन निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे।